Hello dear students, welcome to the instructional video for class 12 accountancy board examination. Class, in this instructional video, we will be going to cover paper pattern, effective utilization of time, chances of mistakes as well as the presentation part. आप सभी को पता है अकाउंटेंसी के अंदर मिस्टेक्स की बहुत सारी चीजें होती है जहां पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं एज वेल एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर प्रेजेंटेशन. So today I am going to cover all of these important topics. So first of all, the paper pattern will be, your paper is divided between two parts, that is part A and part B. Overall you will be having 34 questions of 80 marks. Part A, that is of partnership and company accounts. In part A there will be 16 questions of 1 marks each, then 4 questions of 3 marks each, then 2 questions of 4 marks each, and then 4 questions of 6 marks each. So your part A total will be of 60 marks. In part B, that is the analysis of financial statements, you will be going to have 4 questions of 1 marks each, 2 questions of 3 marks, 1 question of 4 marks, and 1 question of 6 marks. So there the total will be 20 marks. So class, let's move further. As I have told you, the paper is divided between two parts, part A and part B. Part A is of 60 marks, that is partnership accounts, where you will be having 5 chapters. Your first chapter is your fundamentals of partnership, change in profit sharing ratio among existing partner, admission of a partner, retirement and death of a partner, and dissolution of partnership firm. Then you are having company accounts. 2 chapters will be there. One is your issue of shares, forfeiture of shares, and the second one will be your issue of debentures. Just make one thing very clear, class. From issue of debenture, there is a topic that is issue of debentures on the basis of redemption. So you will be going to have that particular topic also. Okay. Partnership accounts, that is 5 chapters, will be of 36 marks, and company accounts 2 chapters will be of 24 marks. तो कंपनी अकाउंट्स का वेटेज काफी ज्यादा है, 2 ही चैप्टर है लेकिन मार्क्स 24 है. ओके क्लास. देन पार्ट बी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 20 मार्क्स का वेटेज है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज देयर, रेशियो एनालिसिस इज देयर, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज देयर. एंड दिस टाइम you will be going to have comparative financial statements as well as common size financial statements also. So now let's move further, class. Effective utilization of time. How you are going to use your time effectively while performing your accountancy exam. Class, accounts का पेपर बहुत लेंदी होता है, हमेशा पेपर बहुत वाइड होता है, 34 क्वेश्चंस हैं, काफी सारी वर्किंग करनी होती है, फॉर्मेट्स बनाने होते हैं, तो आपका टाइम यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है यहाँ पे. ओके, यूज योर रीडिंग टाइम इफेक्टिवली ऑन 6 मार्क्स एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन. आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलेगा. उसमें पूरा पेपर रीड करने की जगह पे व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू रीड योर 6 मार्क्स एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन इन दैट पर्टिकुलर 15 मिनट्स. उसको रीड करना है, उसको समझना है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, उसे अपने माइंड में आप फिक्स कर लीजिए. ओके, एंड देन टू कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम, मेंटेन योर स्पीड फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ. हमेशा होता है क्लास, जब अनाउंस होता है लास्ट 1 आवर इज रिमेनिंग, लास्ट 30 मिनट्स इज रिमेनिंग, एट दैट मोमेंट यू ऑल स्टार्ट राइटिंग वेरी फास्ट. तो ऐसा नहीं करना. वो जो फास्ट स्पीड है वो आपको मेंटेन करनी है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग से ही स्पीड को मेंटेन करना है, फास्ट लिखना है. ओनली इन दैट केस यू कैन कंप्लीट योर पेपर ऑन टाइम. ओके, डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन थिंकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. कोई क्वेश्चन में सोचने में ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करना. नहीं आ रहा है, सो लीव इट, लीव सम स्पेस फॉर दैट क्वेश्चन एंड प्लीज मूव फर्दर. ओके, द नेक्स्ट इज कवर विद फुल एक्यूरेसी. You have to cover your paper with 100% accuracy level. Whatever the questions you are attempting, उसे पूरा आपको अटेम्प्ट करना है, उसको पूरा आपको सॉल्व करना है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. ओके, the next is your chances of mistake. The next topic is chances of mistake, where the student can make mistake. Now, the very first is your calculation part. Class,
हमेशा मैंने देखा है आप मिस्टेक्स करते हो अपनी कैलकुलेशन पार्ट पे। कभी आप लोगों ने जीरो नहीं लगाया है, आप कॉमास नहीं लगाते हो जीरो के साथ में, टोटलिंग में मिस्टेक्स हो रही है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में, रेशियो में, एलसीएम कैलकुलेट करने में, तो यू शुड इग्नोर सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स एंड योर कैलकुलेशन पार्ट शुड बी इफेक्टिव। ओके, नो मिस्टेक शुड बी देयर इन द कैलकुलेशन पार्ट। जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम आराम से पहले देखेंगे, वापस से उसको क्रॉस चेक करेंगे, ओनली देन यू विल राइट। अदरवाइज होता क्या है, हमने कैलकुलेशन गलत करा, हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, सो प्लीज कीप दीज थिंग्स इन माइंड। राइटिंग ऑफ जीरो, राइट जीरो विद कॉमास। जीरो लिखते हैं तो कॉमास, मैंने अभी आपको बताया कि आपको विद कॉमास यू हैव टू पुट द जीरोस। ओके, लीविंग ऑफ सॉल्यूशन ओनली बाय डूइंग द वर्किंग नोट्स, ये कभी भी मत करना क्लास। सिर्फ वर्किंग नोट्स लिख दिया और आप लोगों ने सॉल्यूशन को वहीं पे छोड़ दिया, ऐसा नहीं। वर्किंग नोट्स के मार्क्स हैं, लेकिन जो मेजर मार्क्स होते हैं वो आपके जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की उसमें होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, द क्वेश्चन हैज आस्क्ड यू टू प्रोवाइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, सो यू हैव टू प्रोवाइड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। उसी चीज के मार्क्स हैं, वर्किंग नोट्स के उतने मार्क्स नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर प्रेजेंटेशन पार्ट। प्रॉपर वर्किंग नोट शुड बी प्रिपेयर फॉर एडजस्टमेंट्स। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस कर रहे हो तो उसके अंदर आप अपनी एडजस्टमेंट्स जो भी है उसको शो करो वर्किंग नोट्स में। कोई इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जैसे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो है, ओके, रिजर्व्स के डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल है, इन सभी को आपको शो करना है अपने वर्किंग नोट्स में। आफ्टर दैट यूज योर लास्ट पेज फॉर योर रफ वर्क। बीच में, ऊपर, नीचे, साइड में कहीं पर भी रफ वर्क नहीं करना है। यूज योर लास्ट पेज। ओके, आफ्टर दैट मेंशन द नरेशंस इन ईच जर्नल एंट्रीज। जो भी आप जर्नल एंट्री कर रहे हो, यू हैव टू मेंशन द नरेशन एज वेल। ओके, सपोज मान लो योर क्वेश्चन इज 100% करेक्ट, but then the examiner, the checker has the right to deduct the marks on the basis of narration. So please write the narration, write proper narrations with each journal entries. All right class, that's all from my side. Thank you so much, all the very best.